Hello, dear students. Today I am going to read and explain lesson 11, The Thakur's Well. It is lesson 11 from a reader book and it is written by Munshi Premchand. Munshi Premchand is a great short story writer of Hindi and Urdu languages. He has written more than 12 novels and 250 short stories. He was a great translator too. Premchand is his pen name and he was Dhanpat Roy. Dhanpat Roy is Munshi Premchand's real name. Actually, Munshi Premchand he uses for his novels. It is called that Premchand is his pen name. Realism is one of the most important feature of Premchand's work. Untouchability is also a main theme in the work of Premchand. Untouchability means छुआछात. And during Vedic age, Indian society was divided into four varnas as Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Brahmins were considered as priestly class. Priestly means पूजा का काम जो करते हैं ना, priest, पुजारी. And Kshatriya as warriors, जो वॉर पे जाते हैं, जो युद्ध में जाते हैं लड़ने के लिए, जैसे सोल्जर्स हैं आज, दैट आर क्षत्रिय. एंड द वैश्य एज ट्रेडमैन, जो व्यापारी होते हैं, ट्रेडमैन. एंड शूद्रास एज द लेबर क्लास आर कॉल्ड शूद्रास. From the Vedic age, the Shudras kept themselves away from the village and they were meant to serve the other class people. Shudras जो हैं लेबर क्लास होते थे, तो इनका मेन काम क्या होता था? इन तीनों क्लासेस को सर्व करना, और विलेज में इनको इन तीनों क्लासेस से अलग रखा जाता था. इनको छोटी क्लास मानी जाती थी. Here is a short story entitled The Thakur's Well, and the author Premchand offers before the readers the condition, the predicament of the low caste people and their struggle to get pure water, which is a basic need for a man. अब वाटर जो मैन की बेसिक नीड है, इसके लिए भी शूद्रास जो होते थे, शूद्रा जो लेबर क्लास होती थी, उनको इस चीज़ से दूर, मतलब ये चीज़ें भी उनके लिए अलग रखी जाती थी कि वाटर को भी आपने टच नहीं करना, जो एक बेसिक नीड है फॉर अ मैन टू survive. In this story, the author depicts the humiliation of the low-born and how they were dominated by the upper caste society. Let's get started with the text. Here is the text. I am going to start with the text. Jokhu brought the lota to his mouth, but the water smelled foul. Jokhu, here is the character named Jokhu. Jokhu brought the lota to his mouth, but the water smelled foul. As Jokhu brought the lota that was filled with water to near his mouth to relish the water, but what he saw that the water smelled foul. It was stinking. जैसे ही जोखू ने वाटर को अपने माउथ के पास लिया पीने के लिए, उसने क्या देखा कि वाटर में से स्मेल आ रही थी. He said to Gengi, here is the another character Gengi, what kind of water is this? ये किस तरह का वाटर है? It stinks so much, I can't drink it. इससे तो स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, और ये पीने लायक नहीं लग रहा. Here the character is Joku and another character is Gengi. It stinks so much I can't drink it. My throat's burning and you give me water that's turned bad.
मेरा थ्रोट, मेरा जो गला है वो बर्निंग मीन्स सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, लेकिन तुमने मुझे कैसा वाटर दिया जो फाउल है, जिससे बैड स्मेल आ रही है। एवरी इवनिंग गेंगी फिल्ड द वाटर जग्स, द वेल वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ एंड इट वॉज हार्ड फॉर हर टू मेक सेवरल ट्रिप्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गेंगी, जो कैरेक्टर गेंगी है, उसको वाटर जग्स भर कर लाने होते हैं एवरी इवनिंग, क्योंकि उनका जो वेल है, जो कुआं है, वो बहुत दूर है, तो बार बार वहाँ नहीं जाया जा सकता। इसलिए वन डे प्रायर इवनिंग में वो सारा का सारा पानी भर के रख लेती थी। She had brought this water yesterday and there had been no bad smell at all to it. अब ये पानी एक दिन पहले का भरा हुआ है, तो उस टाइम इसमें से स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये पानी एक दिन का पड़ा हुआ है, इसलिए इसमें से बैड स्मेल आ रही है। देन हाउ कुड इट बी देयर नाउ? इससे पहले तो पानी नहीं, स्मेल नहीं आ रही थी, अब क्यों आ रही है? शी लिफ्टेड द लोटा, उसने लोटा उठाया अपने पास, एंड नोस्ट्रिल्स एंड इट सर्टनली स्मेल्स फाउल। जैसे ही उसने उसको अपने नोस्ट्रिल्स के पास सूंघने की कोशिश की, तो उसने क्या देखा कि यस, इट वॉज जोकू वॉज टेलिंग द ट्रूथ दैट इट स्मेल्स फाउल। जो कुछ सच बोल रहा था, इसमें से बैड स्मेल आ रही थी। श्योरली सम एनिमल्स मस्ट हैव फॉलन इनटू द वेल एंड डाइड। ऐसा हो सकता है कि वेल के अंदर कोई एनिमल गिर गया हो और वो वहाँ मर गया हो, इसलिए इसमें से स्मेल आ रही थी। बट शी डिडेंट नो वेयर एल्स शी कुड गेट एनी वाटर। बट अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो पानी कहाँ से ले। नो वन वुड लेट हर वॉक अप टू द ठाकुर्स वेल। अब उसको कोई परमिशन नहीं देगा कि वो जो ठाकुर्स के वेल बने हुए हैं उसमें से वो पानी कलेक्ट कर सके। इवन वाइल शी वॉज फार ऑफ, पीपल वुड स्टार्ट शाउटिंग एट हर। यहाँ तक कि अगर वो वेल के आसपास भी दिखाई दी तो लोग वहाँ शाउट करने लग जाएंगे। उसको पानी तो बिल्कुल भरने, वो वहाँ इवन खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो आप देख सकते हैं कि वैदिक एज में, पुराने टाइम में, शूद्रा की हालत, जो शूद्र थी, जो लेबर क्लास थे, उनकी हालत कितनी बुरी थी। एट द अदर एंड ऑफ द विलेज द शॉपकीपर एंड अ वेल, बट इवन देयर दे वुडेंट लेट हर ड्रो एनी वाटर। शॉपकीपर का एक वेल ज़रूर था, लेकिन वो उसको वहाँ से वाटर नहीं भरने देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फैमिली है, ये एक शूद्र क्लास से है, एक लेबर क्लास से है। And they wouldn't let her draw any water. For people like herself, there wasn't any well in the village. शूद्रा के लिए कोई भी विलेज में कोई भी वेल नहीं था, कुआं नहीं था, उनको बहुत दूर से पानी भर के लाना होता था। जोखू हु हैड बीन सिक फॉर सेवरल डेज, जोखू जो कि बीमार था बहुत दिनों से, हेल्ड बैक हिज थर्स्ट फॉर अ लिटिल वाइल, उसने अपनी थर्स्ट को, अपनी प्यास को रोक रखा था। देन ही सेड, आई एम सो थर्स्टी, आई कांट स्टैंड इट। मैं बहुत प्यासा हूँ और मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ। ब्रिंग मी द वाटर। इसलिए उसने गेंगी को बोला कि मेरे लिए वाटर लेके आओ। आई विल होल्ड माई नोज एंड ड्रिंक अ लिटिल। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, अपनी नाक को पकड़ के, ठीक है, इस पानी को पी ही लेता हूँ। इससे पता लगता है कि वो कितना थर्स्टी है। वो अपनी प्यास को रोक ही नहीं पा रहा। वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं इसको पी लूँगा। गेंगी डिड नॉट गिव टू इट टू हिम। गेंगी ने उसको ऐसा नहीं करने दिया। हिज सिकनेस वुड गेट वर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग बैड वाटर। क्योंकि जोखू बीमार है, सिक है, अगर वो गंदा पानी पी लेगा तो ऑब्वियसली वो और बीमार पड़ सकता है। इसलिए गेंगी ने इसको गंदा पानी नहीं पीने दिया। बट शी डिडेंट नो दैट बाय बॉइलिंग द वाटर इट वुड बी मेड सेफ। लेकिन उसको इतना भी नहीं पता कि अगर इसको बॉयल भी किया जाए वाटर को, तो क्या ये पानी सेफ होगा। इसलिए शी सेड, हाउ कैन यू ड्रिंक इट? हु नोज व्हाट काइंड ऑफ बीस्ट हैज़ डाइड इन इट। इसको कैसे पिया जाए, हमें पता ही नहीं कि किस तरह का एनिमल इसके अंदर मरा पड़ा है। आई विल गो एंड गेट यू सम वाटर फ्रॉम द वेल। मैं जाऊंगी और तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊंगी। सरप्राइज्ड जोकू स्टेयर्ड एट हर। वेयर कैन यू गेट मोर वाटर? कहाँ से लेकर आओगी तुम वाटर? द ठाकुर एंड द शॉपकीपर बोथ हैव वेल्स, वोंट दे लेट फिल जस्ट वन लोटा? ठाकुर और शॉपकीपर दोनों के पास वेल्स तो हैं, लेकिन वो भला उनको क्यों लाने देंगे वाटर? यू विल कम बैक विद योर आर्म्स एंड लेग्स ब्रोकन। तुम अगर वापस आओगी
पानी तो नहीं होगा तुम्हारे हाथ में, बट क्या होगा, तुम्हारे हाथ पैर टूटे मिलेंगे। यू वुड बेटर जस्ट सिट डाउन एंड कीप क्वाइट, इसलिए ये अच्छा होगा कि तुम घर ही बैठ जाओ आराम से। द ब्राह्मण विल गिव अ कर्स, द ठाकुर विल बीट यू विद अ स्टिक and that money lending shopkeeper takes 5 for every one he gives। तुम्हें ब्राह्मण कोई कर्ज श्राप दे देंगे, ठाकुर तुम्हें पीट देंगे, शॉपकीपर तो हर चीज़ के लिए पैसा मांगते हैं, वो पानी के लिए भी पैसा मांगेंगे। हु केयर्स व्हाट पीपल लाइक अस गो थ्रू, किसको परवाह है हमारी कि हम कैसी लाइफ बिता रहे हैं। People like us to go through, whether they say about giving some help, we can just try and nobody will even come to this door to have a look। किसी को परवाह नहीं है, इवन हम मर भी जाएंगे तो कोई हमें यहाँ देखने तक नहीं आएगा। डू यू थिंक पीपल लाइक दैट आर गोइंग टू लेट यू ड्रॉ वाटर फॉर देयर वेल। इस तरह के लोग जो मरने की भी परवाह नहीं करेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें अपनी वेल से पानी लेने देंगे। द हार्श ट्रूथ वॉज इन दीज वर्ड्स, बिल्कुल एक हार्श ट्रूथ था इन वर्ड्स में। एंड गैंगी कुड नॉट डिनाई इट, और गैंगी इसको मना भी नहीं कर सकती थी कि रियलिटी में सोसाइटी में ऐसा नहीं था, बिल्कुल था। बट शी वुडेंट लेट हिम ड्रिंक दैट स्टिंकिंग वाटर, बट वो जोकू को वो सिंकिंग वो बैड स्मेल्ड वाटर, फाउल वाटर पीने भी नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने उसको रोके रखा। अब वो सोच रही थी कि मैं रिस्क लूँगी कहाँ जाने के लिए, ठाकुर के वेल में जाने के लिए, जो शॉपकीपर्स का वेल बना हुआ है। मैं रिस्क लूँगी, वहाँ जाऊँगी और पानी लेने की कोशिश करूँगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल explain in the next lesson, in the next video. Thank you very much, students.